Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter New Empires and Kingdom in History, and under this chapter, we are discussing about new empires and new emperors. We have discussed about Samudragupta, and in this regard, we have also discussed about prasastis, which are like a poem which were written in praise of the emperors and kings. The court poet of Samudragupta named Harisena. He has composed this prasasti about Samudragupta, which is inscribed on the Asokan pillar at Allahabad. And from that inscription, we come to know about Samudragupta that he was a great warrior and he was so courageous and all these things. And apart from some of the personal qualities of Samudragupta, Prasastis also give information about the uh, empire, how the empire was ruled, how the empire was divided into different types of regions. Some are in direct control, some of the parts were in indirect control of the emperor. And then we have also discussed about the genealogy of Samudragupta, which we also know from the Prasastis कि उनके फादर कौन थे, उनकी मदर कौन थी. Then his father Chandragupta was first started to be called Maharaja Dhiraj. So, and not only we come to know about the ancestors of Samudragupta, but we also know about his coming generation. The name of his son was also Chandragupta. He was Chandragupta II, and he was also a very great emperor. And in his court, there was so many learned people in his court, like Kalidas, who is such a famous poet. He was there at the court of Chandragupta too. Then Aryabhat, the astronomer, was also one of the court members of Chandragupta. And then we have discussed about Harsavardhana, who was the ruler of Thanesar. And we know about Harsavardhana from his biography, Harsa Charita, which is written by his court poet Ban Bhatta. Other than this Harsa Charita, there is also another source from where we know about Harsavardhana, that is the accounts written by Xuanzang, the Chinese pilgrim who came to India at the time of Harsavardhana, about which we have discussed in the previous class also. And then we have also discussed how Harsavardhana was successful in conquering the areas of the east. He defeated the ruler of Bengal and he took control over Magad also. But he was not as successful in the western and southern part of the country. When he wanted to control the Deccan India, at that time he was stopped by Pulkesin II of Chalukya dynasty. Okay, and after this we have discussed about the Pallavas and the Chalukyas. These two were the important ruling dynasties of South India. And we see that both these Pallavas and Chalukyas, they were engaged in वॉर बिटवीन देम. उनके बीच में हमेशा बैटल होते रहते थे, वॉर होते रहते थे. और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो पल्लवास थे उनकी कैपिटल कांचीपुरम थी और चलुक्यास का जो कैपिटल था दैट वाज आयहॉल था. और यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे के वेल्थ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे. And in this regard, we have also discussed about Pulkesin II, who was the most famous ruler of Chalukyas. And we know about Pulkesin II from
one of the prasastis, which prasasti is composed by his court poet Ravi Kirti. So we are seeing the great rulers, the great emperors or rulers and their court poet. Like अगर हम देखें समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट था हरिसेना, देन हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट था बाणभट्टा, एंड देन पुलकेशिन टू, द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन टू वाज रवि कीर्ति. सो ये सभी जो कोर्ट पोएट्स थे, दे यूज्ड टू राइट इन प्रेज ऑफ देयर रूलर, जिसको हम प्रशस्ति कह रहे हैं, जिसको कि इंस्क्राइब किया जाता था कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ सब लोग उसको देख सके. तो रवि कीर्ति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ this Pulkesin II, and from his prasasti we know about Pulkesin II. In this prasasti, which is composed by Ravi Kirti, we see it tells about the ancestors of Pulkesin II, and Pulkesin got the kingdom from his uncle, and we also see that Ravi Kirti explained the battle which he fought with the western and eastern coastal regions. जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल रीजन के जो रूलर्स थे उनके साथ जो बैटल्स हुए पुलकेशिन II के, उसके बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शंस में, प्रशस्तिज में मिलता है डिस्क्रिप्शन. एंड ही ऑल्सो चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा. जब हर्ष साउथ में आना चाहते थे, एंड व्हेन ही क्रॉस्ड नर्मदा रिवर, तो उस वहां पर उनको रोक दिया पुलकेशिन II ने. और तब रवि कीर्ति ने क्या कहा, जब हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने डिफीट किया, एट दैट फॉर दैट मोमेंट रवि कीर्ति सेड दैट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा. हर्षा मीन्स happiness. So because Harsha was defeated by Pulkesin II, so he was not a happy person now. So all this we see, and but what we find कि ये जो पुलकेशिन II के किंग था, he was the ruler, great ruler of Chalukyas. लेकिन ये जो पीरियड था वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, और थोड़े ही दिनों में हम देखते हैं कि दोनों ही जो पल्लवास और चालुक्यास थे, दोनों ही एंड हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाता है उनका, और न्यू रूलर्स जो होते हैं वो आते हैं, जो कि राष्ट्रकूटास और चोला डायनेस्टी के थे. तो पहले पल्लवास और चालुक्यास थे, फिर पल्लवास और चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटास और चोलास आते हैं. ओके, एंड you will read in detail about these Rashtrakutas and Cholas in your class 7th history book. Okay, now we will discuss ki, how these kingdoms were administered. What was the method of administration of these kingdoms? Okay, so what we find कि जैसे शुरू से from the very beginning we are seeing that land revenue was very important for the kings. जो किंग होते थे वो लैंड रेवेन्यू लेते थे. लैंड रेवेन्यू मीन्स टैक्स, है ना. जो फार्मर्स थे, जो फार्मिंग करते थे, दे यूज्ड द लैंड ऑफ द किंगडम, एंड इन because they were using the land of the kingdom, so they have to give tax to the king, जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं. एंड दिस land revenue was a very important source of income for the king from the very beginning. वो राजा के लिए बहुत ही important रेवेन्यू का सोर्स होता था. और जो हम देखते हैं क्या कि विलेज जो था वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था. जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो वहाँ पर सबसे जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सा है, विलेज है. विलेज को एडमिनिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि विलेज वर द सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज. ओके, सो व्हाट वी सी कि अभी हम जहाँ पर हैं, जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम. देयर वाज सम new developments. What are these new developments? We see that the kings started to adopt a number of steps to win the support of men who were
powerful, either economically or socially, or because of their political or military strength. So the kings, now the kings started to get support of those people who were influential in the society, who were influential because they were very rich, who were influential because they have political or military strength. तो ऐसे जो influential लोग थे सोसाइटी के अंदर, उन influential लोगों का सपोर्ट जो था वो राजा को चाहिए था in order to administer efficiently. And the king started to do so many things to get this support, कि कैसे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सोसाइटी के अंदर उनके सपोर्ट को कैसे हम लें, उसके लिए कुछ नए न्यू स्टेप्स वर टेकन बाय द किंग in order to get the support of the influential people in the society. And what were these efforts? First of all, we find what happened, that some important administrative posts were now hereditary. Okay, so important administrative posts were hereditary. ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे उनको अब हेरिडिटरी बना दिया गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटरी? हेरिडिटरी मीन्स, जैसे हमने डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था ना, डायनेस्टी क्या होता है, जब एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो जब रूल करते हैं तो हम उसको डायनेस्टी कहते हैं. जैसे जो भी राजा है, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, हिज सन और एनीवन हु बिलोंग टू दैट फैमिली, या तो उसका खुद का बेटा या उसके ब्रदर का जो सन है, ही कैन आल्सो बिकम द किंग. तो एक ही फैमिली के लोग राजा बन रहे हैं. फिर जैसे राजा का डेथ हुआ, राजा का बेटा किंग बना, देन अगेन फिर इस राजा का अगर जब 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 भी डेथ होगा तो फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, है ना. तो इसको हमने डायनेस्टी कहा था. जैसे मौर्यन डायनेस्टी हम देख रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी देख रहे हैं, तो दीज ऑल वर बेस्ड ऑन द हेरिडिटी. इसी को हम हेरिडिटरी कहते हैं कि जो भी आगे आने वाला जो जनरेशन है, स्पेशली हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, जिसमें कि जो मेल होते हैं उनका डोमिनेशन होता है, उनको हम थोड़ा ऊपर का प्लेस देते हैं. हमारी सोसाइटी ऐसी ही है ना, जिसमें कि हम इक्वालिटी नहीं होती है, जेंडर इक्वालिटी. वी गिव इम्पोर्टेंट प्लेस टू मेल मेंबर्स इन फैमिली और इन सोसाइटी. तो इसलिए क्या होता है कि जो भी एक पोस्ट कोई होल्ड कर रहा होता है, वो अगर मान लो हम वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, इम्पोर्टेंट किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कोई है, जैसे अभी हम लोग देखें कोई मिनिस्टर है ना, हमारे होम मिनिस्टर है. अब जो होम मिनिस्टर अपने पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, whenever the minister dies, at that time who will become the next home minister? His son will become the next home minister. ऐसा अभी नहीं होता है. ऐसा जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय ये ऐसा होना शुरू हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे उसको हेरिडिटरी बना दिया गया. मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को होल्ड कर रहा है उसके फैमिली का ही मेंबर फिर उस पोस्ट को होल्ड करेगा जबकि उसकी डेथ हो जाएगी. जो भी अभी होल्ड कर रहा है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो फिर उसी फैमिली का एक नया मेंबर जो है ही विल होल्ड द पोस्ट. इसी को हम हेरिडिटरी कहते हैं. आज के समय में क्या है, हमारे यहाँ किसी भी कोई भी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होती है.
हर पोस्ट के लिए या तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तब हम उस पोस्ट को होल्ड करते हैं, या फिर इलेक्शंस होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कैसे हुआ, इलेक्शन से वो जीतते हैं। तो अब ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन पहले के का जो समय था, जिस समय की हम बातें कर रहे हैं, एट दैट टाइम ये चीजें थी। ठीक है, तो राजा का तो होता ही था, द किंग, द किंग जो बनते थे वो तो हेरिडिटरी होता था, एक ही फैमिली के लोग बनते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे वो भी हेरिडिटरी होने लगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट कौन था, हरिसेना, है ना। तो हरिसेना जो था, he was the court poet of समुद्रगुप्ता. Besides being the court poet, he was also महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे महादंड नायक। इसी को इस हिंदी को ही इंग्लिश में रख दिया गया है महादंड नायक। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो हरिसेना जो थी वो he was चीफ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ समुद्रगुप्ता। तो तो ये जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर बने हरिसेना, वो क्यों बने, बिकॉज हिज फादर वाज आल्सो अ चीफ जुडिशियल ऑफिसर। जब उस हरिसेना के फादर चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, और जब उनका डेथ हो जाता है हरिसेना के फादर का, तो फिर चीफ जुडिशियल ऑफिसर का पोस्ट जो था वो खाली हो गया, एंड देन दिस वेकेंट पोस्ट वाज फिल्ड बाय हरिसेना। ओके, यही होता है हेरेडिटरी का मतलब, कि हरिसेना के फादर जो थे वो महादंडा नायक थे, जब उनका डेथ होता है तो हरिसेना महादंडा नायक बन जाते हैं, और उसके बाद हरिसेना के बाद उनका बेटा महादंडा नायक बन जाएगा। इस तरह से जो चीजें होती हैं वो ऐसे चलती हैं जब हेरिडिटरी होता है। तो ये एक नया डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इस समय में, इस पीरियड में, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी होने लगे थे। ठीक है, ये फर्स्ट डेवलपमेंट है। सेकेंड डेवलपमेंट क्या थी कि द सेम पर्सन यूज टू होल्ड मेनी पोस्ट। एक ही इंसान था और वो कई सारी पोस्ट होल्ड करता था। ठीक है, लाइक अभी हमने बात किया हरिसेना का, ही वॉज चीफ जुडिशियल ऑफिसर और महादंड नायक। देन apart from being Mahadanda Nayak, he was also a Kumar Amatya. ठीक है, यहाँ पर हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ साथ याद रखेंगे महादंडा नायक ऑल्सो, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये पोस्ट तो था ही, हरिसेना was holding the post of chief judicial officer. Apart from this, he was also a Kumar Amatya. What is the meaning of Kumar Amatya? Kumar Amatya means एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। अमात्य मतलब मिनिस्टर होता है। ओके, तो जो एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी था वो, एंड अदर देन एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, ही वाज आल्सो अ संधि विग्रहिका। संधि विग्रह करने वाला, यानी कि जो संधि का मतलब क्या होता है, पीस ट्रीटी करना, किसी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग किंगडम्स थे, उनके साथ अगर संधि करनी है या वॉर करना है, उसकी भी डिसीजन लेने वाला जो एक मिनिस्टर का पोस्ट था, वो भी हरिसेना ही था। तो हरिसेना जो थे वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, कुमार अमात्य थे, और थर्ड जो हम देख रहे हैं वो क्या थे, संधि विग्रहिका। इस संधि विग्रहिका को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड
peace. Okay. तो ये तीन पोस्ट, द ऑल द थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, then Kumar Amartya, then Minister of War and Peace. All these three important posts were held by single person, Hari Sena. तो इस तरह से क्या हो रहा था कि किंग जो है वो सोसाइटी के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। कुछ लोग यानी वो लोग जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, उनकी पावर को और भी इंक्रीज किया जा रहा था क्योंकि द किंग वांटेड देयर सपोर्ट। ठीक है। एंड आफ्टर दिस वी सी another development took place during this time, and that was कि important men जो थे उनका क्या था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बातें मानी जाती थी। ठीक है, ये नहीं कि राजा जो है वो अपने हिसाब से जैसा मन वैसा डिसीजन लेगा, बट द किंग took the views of important people in the society before taking any decision. तो इसमें क्या हम देखते हैं कि जिनके जिनके व्यूज लिए जाते थे बाय द किंग वो थे जैसे नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी कौन हुए? चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। ठीक है। तो जो नगर श्रेष्ठी होते थे उनके व्यूज को भी लिया जाता था। इसके अलावा लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस होते थे जिनको सारथावाह कहा जाता था, उनके भी व्यूज लिए जाते थे बिकॉज ट्रेडर्स जो थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किंग, है ना। जो ट्रेडर्स थे वो किंग को टैक्स देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, दे वर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग, है ना। तो इन दिस सिचुएशन द किंग वांटेड सपोर्ट ऑफ दीज पीपल, जो जैसे नगर श्रेष्ठी जिसको हम कह रहे हैं, जो कि चीफ बैंकर कहलाता है, या मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो मर्चेंट ऑफ द सिटी जो है उसके व्यूज को किंग मानते थे डिसीजन लेने में, क्योंकि किंग उनका सपोर्ट चाहते थे, क्योंकि ट्रेडर्स से किंग को बहुत फायदा था, उनको टैक्सेस मिलते थे। ठीक है। तो नगर श्रेष्ठी या चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी उनके व्यूज को कंसिडर करते थे किंग, या फिर जो लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस होते थे उनके भी व्यूज को किंग कंसिडर करते थे। देन प्रथमा कुलिका भी होते थे या चीफ क्राफ्ट्समैन, ओके, एंड द हेड ऑफ कास्ट्स और स्क्राइब्स होते थे। इन सब के व्यूज को किंग जो है वो रखते थे, जो भी कुछ लोकल डिसीजंस होते थे, क्योंकि ये सारे कौन है? इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, है ना। क्राफ्ट पर्संस हैं, ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजा के लिए, क्योंकि उससे राजा को इनकम आता है और तभी राजा काम कर पाएंगे किंगडम के लिए। अगर राजा के पास इनकम नहीं आएगी तो राजा कैसे काम करेंगे? राजा, द किंग विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन द किंगडम इन द एब्सेंस ऑफ इनकम। तो इनकम के लिए उसको ट्रेडर्स, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन सबको साथ लेकर चलना पड़ता था। ठीक है। एंड व्हाट वी फाइंड कि इस तरह से जो राजा ने सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंशियल लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। एक ही सिंगल पर्सन इज होल्डिंग सो मेनी पोस्ट, द पोस्ट्स वर बिकम हेरिडिटरी। when the king is going to take local decisions, he is taking into consideration the views of the nagar shresthi, he is taking into consideration the views of the merchant of the karwa, he is taking into consideration the views of the prathama kulika or chief craftsman, और ही इज टेकिंग द व्यूज ऑफ द स्क्राइब्स। तो एक तरह से क्या हुआ कि उसको सपोर्ट तो मिलने लगा। इन सारे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल की हम बात कर रहे हैं, दे स्टार्टेड टू गिव सपोर्ट टू द किंग, बट वी सी कि बिकॉज ऑफ दिस
what happened कि the king started to lose its power. किंग के पावर्स में कमी आने लगी, क्योंकि जो पावरफुल मैन थे, जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग बनने लगे। राजा ने ही उनको स्ट्रांग बनाया, है ना। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने लगे और राजा के पावर्स ही कम होने लगे। इसके बारे में भी यू विल स्टडी अबाउट दिस। इसके आगे क्या होता है ये तुम अगले क्लास में 7th में पढ़ोगे, किस तरह से ये जो सिस्टम डेवलप हुआ, इसके कारण एक नया ही सिस्टम आ जाता है जिसको हम कहते हैं सामंतवादी प्रथा। ओके, सामंती सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस अभी तुम्हें ये नहीं पढ़ना है, ये तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो ये राजा तो चाहता था कि जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं सोसाइटी के, उनका सपोर्ट उसको मिले, और इसलिए उनको वो ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा, ज्यादा से ज्यादा उनको पावर देने लगा। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो धीरे धीरे अपने पावर को मिसयूज तो हम नहीं कहेंगे, बट वो ज्यादा पावरफुल बनने लगे। राजा जो था उसके पावर कम होने लगे और इन्फ्लुएंशियल लोगों के पावर जो थे वो बढ़ने लगे। अभी बस यहीं तक तुम्हें समझना है। ओके, अब एक और चेंज आया। अभी तो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो आर्मी में आया। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आर्मी में भी चेंजेस आए। अब हम देखेंगे कि आर्मी में क्या चेंजेस आए। ओके, तो जैसे पहले के जो रूलर्स थे उसी तरह से अभी भी कुछ रूलर्स जो थे वो अपनी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी उन्होंने मेंटेन कर रखी थी, है ना। और इस आर्मी में उनके एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, कैवेलरी होती थी, फूट सोल्जर्स होते थे। कैवेलरी क्या हुआ, जो हॉर्स पे चलने वाली जो सेना होती है, हम उसको कैवेलरी कहते हैं। तो चार तरह के होते थे। एक तो फूट पे चलने वाले जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं, देन कैवेलरी होती थी जो कि हॉर्स पे चलती थी, देन चैरियट पे चलने वाले भी होते थे, आर्मी पर के जो पर्सनल्स होते थे, एंड एलिफेंट पे चलने वाले। तो कुछ ऐसे राजा थे जो कि अपनी पूरी की पूरी आर्मी को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखे हुए थे, वेल मेंटेन्ड उनकी आर्मी थी, ठीक है। और what we find कि during this period there were some military leaders. Okay, these military leaders provided the king with troops whenever he needed them. ऐसा भी होने लगा कि राजा जो था, king, he stopped keeping his own army, ठीक है। राजा अपनी आर्मी, खुद की आर्मी रखना बंद करने लगे, कुछ राजा धीरे धीरे। ज्यादा कुछ राजा थे जो थे वो अपनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखे हुए थे जिसमें सभी कुछ था, एलिफेंट, चैरियट, कैवेलरी, इन्फेंट्री, एवरीथिंग वाज देयर। बट कुछ राजा जो थे, कुछ किंग्स जो थे, दे स्टॉप्ड कीपिंग देयर ओन आर्मी। इंस्टेड ऑफ कीपिंग देयर ओन आर्मी, दे were dependent on military leaders. Who were these military leaders? These military leaders were those people who provided the king with troops whenever the king was in need of the troops, ठीक है। जब भी किंग को ट्रूप्स की जरूरत होती तो वो क्या करता था, वो मिलिट्री लीडर से ट्रूप्स मांग लेते थे। बात समझ में आ रही है ना। मिलिट्री लीडर्स मतलब राजा अपनी आर्मी नहीं रख रहे हैं। हर राजा ये काम नहीं कर रहा था, कुछ राजा इस तरह से स्टार्ट किए कि अपनी आर्मी हम नहीं रखेंगे, हमको जब भी आर्मी की जरूरत होगी तो हम जाएंगे मिलिट्री लीडर्स के पास और उनसे मांगेंगे कि हमें ट्रूप्स चाहिए। ट्रूप्स क्या हो, वही आर्मी को ही ट्रूप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नया सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। और अगर क्यों राजा इस तरह के काम करने लगे, क्यों मिलिट्री लीडर्स के पास जाना के लिए तैयार हो गए कि हाँ हम अपनी आर्मी नहीं रखेंगे,
क्योंकि आर्मी की जरूरत हर समय तो पड़ती नहीं है। आर्मी की जरूरत तो तभी पड़ती है जब कभी अटैक हो या फिर हम किसी कंट्री पर अटैक करें, then only there will be need of army. तो what is the use of keeping the army for every time? हर समय अगर हम आर्मी रखेंगे तो क्या होगा कि जो आर्मी के लोग हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। तो राजा ने क्या सोचा कि हर समय हम अपनी आर्मी नहीं रखें, बस जब जरूरत होगा तो हम मिलिट्री लीडर से आर्मी मांग लेंगे और उसके बदले में उसको हम पैसे दे देंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है, इससे क्या होगा कि राजा के पैसे बच जाएंगे, जो उसको रेगुलर सैलरी देनी पड़ेगी आर्मी को, वो सैलरी उसकी बच जाएगी, और जब भी जरूरत होगी तो वो मिलिट्री लीडर से बस थोड़े समय के लिए लेंगे, उसके बदले में उसको पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से ये नया जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।